हेलो स्टूडेंट्स, क्लास +1 से अपना टॉपिक चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो चुका है। इसकी जो लास्ट एक्सरसाइज है ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो सिलेबस से आउट कर रखी है। अब हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे पहले भी हमने 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन is ax square plus bx plus c equal to 0 when a is not equal to 0, b or c either 0 or not. A quadratic equation can be solved by two methods. First one is by factorization method and second one is general expression. General expression or quadratic formula. General expression or quadratic formula. First of all, we have to find d. D means discriminant. And discriminant is b square minus 4ac and d is b square minus 4ac. b is coefficient of x का होल स्क्वायर 4 टाइम coefficient of x square multiplied by constant terms. If d is great 0, the result is real and unequal roots. In previous class we have to find the root of the quadratic equation. If d is great 0, real and unequal roots. If d is equal to 0, real and equal roots. If d is less 0, no real roots. No real roots. In two way, d is great 0 or d is equal to 0. We have to already discuss in class 10th standard. Today we have to discuss if d is less 0 means no real or imaginary roots. Find the imaginary roots of the quadratic equation. If d is great 0, real and unequal roots, d is equal to 0, real and equal roots, and d less 0, no real roots means imaginary roots. We have to find two roots, minus b plus minus root d upon 2a. Find two roots and that is minus b upon 2a because d is equivalent to 0. In the same way, d is minus b plus minus root d upon 2a, लेकिन यहाँ जो d की वैल्यू होंगी वो आयोटा में आएगी. आयोटा इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो इस तरह से बेटा ये जो टॉपिक है ये अपने प्रीवियस क्लास से रिलेटेड है. मैं इस एक्सरसाइज के 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला चैप्टर है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स. इन द सेम वे आपको बोला जाएगा वी हैव टू गिवन वी हैव 2x स्क्वायर
plus 3 equal to 0. Solve the equation by factorization method. By factorization, then we have to find the complete square 2x का होल स्क्वायर, नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड पॉजिटिव टू नेगेटिव। आपने आइटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, ये -1 ये माइनस, इसको क्या बना देता है +3। देन √2x का होल स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं √3 आयोटा का होल स्क्वायर यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटी a square minus b square is equivalent to a minus b into a plus b, means 2x minus √3 iota and √2x plus √3 iota equivalent to 0. Either √2x minus √3 iota equal to 0 or 2x plus √3 iota equal to 0. Find the value of x. X is equivalent to √3 iota upon √2. X is equivalent to minus √3 iota upon √2. इस पे भी रूट है। x is equivalent to √3/2 into iota. Also x is equivalent to minus √3/2 into iota. एक मेथड तो ये है। एक सेकंड मेथड और देखिए बेटा इसका, अल्टरनेट मेथड। क्वेश्चन क्या था अपने पास, 2x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू, क्योंकि ये क्या है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मैक्सिमम 2 zeros एंड द हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2, दैट देयर आर 2 zeros and then 2x square minus 3, x square is equal to -3/2 and x is equivalent to plus minus -3/2. Negative means iota, then is 3/2 into iota. We can write √3/2 into iota and minus √3/2 into iota. चाहे आप ये वाला मेथड यूज करें, चाहे वाला ये वाला मेथड यूज करें। बेटा इस तरह से आपको क्या सोल्व करना होगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड द सॉल्यूशन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कर लेता हूं फैक्टराइजेशन पे। नेक्स्ट है x स्क्वायर -4x plus 20 is equivalent to 0. First of all, we have to find the complete square method. In complete square method, first of all, the coefficient of x square is unity. But यहाँ पे coefficient of x square is unity already है. Then second step, half of the coefficient of x, then is half of the coefficient of x 2 square -2 square equal to 0. This and this. इसको आप क्या लिख सकते हैं, x minus 2 का होल स्क्वायर, रिमेनिंग टर्म प्लस 20 -4 इक्वल टू 0, x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस 16, क्योंकि अपने पास जो आइडेंटिटी होती है वो बीच में नेगेटिव साइन होता है। नेगेटिव साइन बनाने के लिए इसके साथ मैंने -16 आयोटा स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू -1 होता है, तो x minus 2 का होल स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, x minus 2 -4 आयोटा, ये a ये b, और x minus 2 plus 4 iota. Find the value of x. X is equivalent to 2 plus 4 iota. Then x is equivalent to 2 minus 4 iota. These are the general factorization method of the given solution of a quadratic equations. क्लियर बेटा? इस तरह से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बाय कंप्लीट स्क्वायर मेथड से इस वाले टर्म को परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अगर यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव साइन आए तो ठीक है, अदरवाइज आप नेगेटिव साइन करके और उसके साथ आयटा स्क्वायर यूज करें। इसको भी कंप्लीट स्क्वायर करें, इसको भी कंप्लीट कर सके, देन यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। नेक्स्ट ये था बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब सॉल्व करने जा रहा हूं
by general solution. General solution means first of all we have to find D. D means discriminant. We have to given equation x square minus 4x plus 7 equal to 0. On comparing ax square plus bx plus c equal to 0, we get the value of a means coefficient of x square, value of b coefficient of x, and c is constant. First of all find D. D means b square minus 4ac minus 4 का square 1 into 7, then 16 minus 28 can be right 12. 12 is negative. D is less 0. The given equation have no real roots. That root is imaginary. And imaginary roots alpha and beta minus b plus minus root d upon 2a minus b. B is already negative. Then is 4 plus minus root 12 upon 2 multiply by 1. 4 plus minus 12 root negative is iota divided by 2. Taking common 4 plus minus इसको आप लिख सकते हैं 4 into 3 into iota divide by 2. 4 plus minus इसका स्क्वायर रूट 2 root 3 iota divide by 2. Then is alpha beta the two zeros is 2 plus minus root 3 iota. एक बार आप इसको नेगेटिव लिख दें, एक बार आप इसको पॉजिटिव लिख दें. बेटा इस तरह से हमने क्या पढ़ा अभी तक? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड एंड जनरल सॉल्यूशन. नेक्स्ट सॉल्व द गिवन एक्सप्रेशन. अब आपको जितनी भी एक्सप्रेशन है उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना होगा. जैसे we have to given equation is x into x plus 1 का होल स्क्वायर into x plus 2 is equivalent to 72. इसको ओपन करने पर यहाँ से कितनी डिग्री मिलेगी मुझे? 2 मल्टीप्लाई में 1 डिग्री यहाँ से 3, 1 डिग्री यहाँ से. इसका मतलब इक्वेशन कैसी है ये? बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कितने जीरोज होंगे इसके? 4 जीरोज होंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इस वाले टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो x plus 1 का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 72. इसको ओपन करना बेटा. a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इसका मतलब x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इनटू x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 72. पुट जो कॉमन टर्म है x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू y. तो ये वाली वैल्यू क्या बनती है? y प्लस 1 इनटू y इक्वल टू 72. y स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 72 is implies y square plus y minus 72 equal to 0, which is quadratic equation by factorization method. 9y minus 8y minus 72. y is common. y plus 9 equal to 0. y plus 9 and y minus 8 equal to 0. The required value of y is minus 9 and 8. Put the value of y यहाँ पे रख दें आप. x square plus 2x equal to minus 9 और x square plus 2x equal to 8. x square plus 2x plus 9 equal to 0. अगर पॉसिबल है तो फैक्टर बनाएं, अदरवाइज जनरल एक्सप्रेशन a equal to 1, b equal to 2 and c equal to 3. b का स्क्वायर माइनस 4 into a into c. 4 minus 36. The difference is negative 32. Alpha beta are the two zeros minus
बी प्लस माइनस रूट 32 अपॉन 2a, देन इट इज 2 प्लस माइनस रूट 32 आयोटा अपॉन 2, इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 8, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो 2 रूट 8 आयोटा अपॉन 2, इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, द रिक्वायर्ड जीरोस इज माइनस 1 प्लस माइनस रूट 8 आयोटा, these are the 2 zeros, remaining 2 zeros is x square plus 2x minus a, x square plus 4x minus 2x minus in factorization method, taking common x plus 4 equal to 0. The two zeros are x plus 4 and x minus 2 factors. Therefore, the value of x is 2 minus 4 and minus 1 plus minus. आप इसको दो पार्ट में लिख सकते हैं, minus 1 plus root 8 iota, minus 1 minus root 8 iota. 1 zero, second zero, third zero and fourth zero. There are the by quadratic equation have 4 zeros. This and this root is real roots and then these two roots are imaginary roots. Next question beta. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व द इक्वेशन x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 equal to 120. सॉल्व द इक्वेशन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, जब आप इसको करेंगे इन दोनों को मल्टीपल तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 120. या तो आप इनकम्प्लीट को क्या मान ले, पुट x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू y, तो ये तो क्या बना y, इस 6 को आप ब्रेक करके 4 प्लस 2 में ब्रेक कर सकते हैं, ये रिजल्ट क्या बनता है y प्लस 2 इक्वल टू 120, y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 120, इसके फैक्टर बनते हैं y प्लस 12 एंड y माइनस 10. Therefore the value of y is negative 12 and positive 10. Put the value of y, x square plus 5x plus 4 equal to negative 12, x square plus 5x plus 4 is equivalent to 10. Solve x square plus 5x plus 4 plus 12 equal to 0, x square plus 5x plus 16 equal to 0, x square plus 5x plus 4 minus 10 equal to 0, x square plus 5x minus 6 equal to 0. इसके फैक्टर होंगे x plus 6, x minus 1. Therefore the two zeros are minus 6 and positive ones. यहाँ से क्या आ गया, a is equivalent to 1, b is equal to 5 and c is equal to 16. Solve the equation alpha beta, then minus b plus minus root d upon 2a, minus 5 plus minus b square minus 4ac, 25 minus 4 into 1 into 16, divide by 2 into 1, minus b plus minus 25 minus 64 divide by 2, minus 5 plus minus, इसको सिंप्लीफाई करने पर 39 negative divide by 2, we can write minus 5 plus minus root 39 iota upon 2. इसको सोल्व आप कर चुके हैं, 20 and 20 40, पावर कितनी थी 1 1 1 1, मल्टीपल में 4 पावर, देयर आर 4 zeros. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, बेटा लास्ट क्वेश्चन है आज का. सॉल्व द इक्वेशन 4x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, डिवाइडेड ईच टर्म बाई x स्क्वायर, प्रत्येक को x स्क्वायर से साथ डिवाइड करें, डिवाइड बाई x स्क्वायर, 4x क्यूब अपॉन x स्क्वायर, 7x
स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर और 4/x स्क्वायर। 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, माइनस 2 पावर से 2 पावर कैंसिल, माइनस 7 माइनस 4/x प्लस 4/x स्क्वायर। इन दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन 4 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 4 कॉमन x प्लस 1/x और लास्ट में क्या बच गया -7 इक्वल टू 0। पुट x प्लस 1/x इज इक्विवेलेंट टू y स्केलिंग बोथ साइड, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2x इंटू 1/x इक्वल टू y स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा y स्क्वायर माइनस 2। तो ये वाला 4 टाइम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर होगा y स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4y माइनस 7। ओपन करने पर 4y स्क्वायर माइनस 8 माइनस 4y माइनस 7। सॉलिड 4y स्क्वायर माइनस 4y नेगेटिव 8 नेगेटिव 5 नेगेटिव 15 इक्वल टू 0। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। a is equivalent to 4, b is equal to -4 and c is equivalent to -15. Find d. d means b square minus 4ac. b means -4 का square 4 into 4 into -15. Solid 16 this एक नेगेटिव पॉजिटिव 16 मल्टीप्लाई बाई 15 दैट 16 प्लस इन दोनों की प्रोडक्ट 240 देन इज 256। फाइंड अल्फा एंड बीटा इज -b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a माइनस b ऑलरेडी b की वैल्यू नेगेटिव 4 प्लस माइनस रूट 256 अपॉन 2 इंटू 4 इसका स्क्वायर रूट प्लस माइनस 16 अपॉन 8 4 प्लस 16 अपॉन 8 4 माइनस 16 अपॉन 8 देन इज 24 अपॉन 8 एंड माइनस 12 अपॉन 8। इसको सॉल्व करने पे 3 और इसको सॉल्व करने पर -3/2। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, put the value of y in the given equation is this and solve again by quadratic equation जनरल एक्सप्रेशन। बेटा इस तरह से ये वाली एक्सरसाइज आपको सोल्व करनी होंगी। कहीं पे भी डाउट होता है आप कमेंट कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो के एंड में देखने के बाद आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।